India is in the throes of one of the darkest moments in the nation's history. A deadly pandemic is now sweeping through a country at an immense speed. Thousands are dying every day as infections continue to soar to record levels. All of a sudden, an overwhelming sense of optimism has now turned into despair and anguish. हमारे सामने उन्होंने दम तोड़ा, हम कुछ नहीं कर पाए। मेरी वाइफ चली गई, मेरे दोनों ब्रदर इन लॉ गए और मदर इन लॉ एक्सपायर्ड हो गई। India is staring at a human catastrophe of unimaginable proportions. What's gone wrong? How could the nation that seemed to have overcome the first COVID wave last year is now down on its knees? Death, devastation, desperation, and despair has permeated the lives of 1.3 billion people in India as the second wave of the COVID-19 pandemic hit the country with immense ferocity. Around 400,000 new cases and more than 4,000 deaths have been reported on many days in May. India's healthcare system has buckled under pressure, leaving people without life-saving hospital beds, oxygen and drugs. In all, over 290,000 people have died from the virus, with reported infections topping 26 million. Why did a country that seemed to have kept a relatively tight lid on the pandemic is now struggling to keep the virus at bay? When the pandemic first took hold last year, India took swift and drastic actions. It even imposed one of the most aggressive lockdowns the world had ever seen. We were early in declaring a lockdown that, of course, had its own repercussions on migrant workers and others. But in terms of the numbers, that certainly had an impact. The numbers came down, and a lot of people thought that it's over. But the warnings went unheeded. The viral floodgates are now wide open. With hundreds of thousands of infections each day, thousands are dying daily. The dead include victims from all sections of the society: political leaders, film stars, national players, ordinary citizens, poor people, and even doctors, nurses, health workers, and journalists. Even the national capital, Delhi, is witness to horrifying scenes of people dying on the way to hospitals, deprived of medical care and oxygen. The entire situation in Delhi is something that we probably only saw in movies. It seems like an apocalypse where everything around just seems to be crumbling down. The scenes are horrendous. If you see the visuals from Delhi, from the hospitals, people walking in with their own oxygen cylinders, people gasping for breath. The numbers don't tell enough of a story, but still they speak loud and clear. So we have 21 million documented infections in India and over 200,000 documented deaths. The initial onslaught took place in the western state of Maharashtra and Delhi. में उनका वो ठीक ठाक हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी। सेकंड मंथ में, मार्च में जब इकट्ठा हुए थे, 14 मार्च को सभी लोग जो है घर के ही लोग थे। उस समय जो है मेरा जो छोटा साला है, उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, मतलब उनको सर्दी जुकाम हुआ था, तो उसके कारण उनके ध्यान में नहीं आया। उसको हॉस्पिटलाइज करने के बाद में 2 दिन बाद उसको बानेर कोविड सेंटर जो है वहाँ पर ले जाया गया, और वहाँ ले जाने के बाद उसका जो कंडीशन है वो क्रिटिकल हो गया, उसको आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। तो जैसे वो आईसीयू में भर्ती करने के बाद में घर के जो लोग हैं उन्होंने टेस्ट करा लिया अपना। मेरी जो मदर इन लॉ थी अलका जाधव, देन मेरा ब्रदर इन लॉ अतुल जाधव, देन उसकी डॉटर ऋतुजा जाधव एंड माय डॉटर आल्सो सुष्मिता, वो चारों लोगों के रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई।
मैंने मेरा और मेरे सन जो है प्रज्वल, वो दोनों का टेस्ट किया। उसमें प्रज्वल का पॉजिटिव आया और मेरा नेगेटिव आया टेस्ट। और उसके बाद में मेरा टेस्ट होने के बाद मेरे वाइफ का और मेरी मदर का दोनों का टेस्ट किया हमने, वो टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद 28 मार्च को मेरी वाइफ जो है वैशाली, उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम शुरू हुआ। वहाँ भारतीय हॉस्पिटल में मैं उनको लेके गया। वहाँ लेके जाने के बाद उनका काफ़ी ब्रीथिंग प्रॉब्लम बढ़ गया था और ऑक्सीजन लेवल जो है लो हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि इनको वेंटिलेटर बेड की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, आप इनको ले जाइए और कहीं दूसरी जगह ले जाइए। तो मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया उनको, बट दे वाज अनेबल टू, उसके लिए कोई वो नहीं ट्रीट कर रहे थे वहाँ से। मैंने 1 घंटे बाद लगभग 2-2:30 बजे उनको वहाँ से लेके पुणे में जंबो कोविड हॉस्पिटल बनाया है शिवाजी नगर में, वहाँ ले गया उनको। वहाँ ले गया तो वहाँ पर जो है वो उसका डोर गेट जो है वो बंद था बिल्कुल, मतलब उन्होंने खोला ही नहीं, गेट ही नहीं खोला उसको। और मैंने काफ़ी उनको रिक्वेस्ट की और मैं रिक्वेस्ट करता रहा, लेकिन उन्होंने गेट खोला नहीं, ना ही डॉक्टर कोई देखने आया। उसके बाद जो है अराउंड और 1 घंटे बाद दूर खेड़ शिवापुर करके प्लेस है, अराउंड 40 किलोमीटर्स होगा। तो वो डॉक्टर से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि उनके पास एक वेंटिलेटर बेड अवेलेबल है। उन्होंने उनको आईसीयू में ले लिया, देन ऑक्सीजन लगाया और एनआईवी सिस्टम जो होता है एनआईवी पे उनको रखा गया, वेंटिलेटर शुरू कर दिया गया। एंड शी वॉज कॉन्शियस, वो बात कर रही थी और उनका ऑक्सीजन लेवल भी मतलब तब तक पहले तो लो हो गया था, लेकिन जब वहाँ जाने के बाद लगभग 1-2 घंटे बाद वो 90 अबोव था। मतलब को उनको एडमिट किया 28 को, तो मैं शाम को निकल आया वापस। 30 तारीख को सुबह जब पूछा था तो उन्होंने कहा था ठीक है उनकी तबीयत अभी, सैचुरेशन भी ठीक है, ऑक्सीजन लेवल ठीक है। लेकिन जब इवनिंग में सडनली उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन लेवल उनकी लो हो गई है, सैचुरेशन ठीक से नहीं हो रहा है। उसके बाद ही उन्होंने कहा कि कार्डियक अरेस्ट आया, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सके, बचा नहीं पाए उनको। मेरी वाइफ एक्सपायर्ड हो गई ऑन 3 अप्रैल। मेरा जो ब्रदर इन लॉ है रोहित जादव, ही वॉज 38 ईयर्स ओल्ड, वो एक्सपायर्ड हुआ। 3 अप्रैल के बाद 4 अप्रैल को जो है मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर्ड हो गई, अलका जादव, शी वॉज 62। और उसके बाद जो है 14 अप्रैल को अतुल जादव 40 ईयर्स ओल्ड, वो एक्सपायर्ड हो गए। Hospital beds, no oxygen cylinders, no medicine. People sitting on the pavements with bodies of loved ones. How did it come to such a pass? At the end of last year, when the infection and death numbers began to fall, fatal miscalculations were made. The government believed the worst was over. Some scientists believed a herd, including Prime Minister Narendra Modi, joined the bandwagon, holding mammoth election rallies. Modi's image now lies in tatters since he squandered early successes, including the Modi government, assuming that herd immunity has been attained in society. Even the privileged in Delhi cannot get a single hospital bed to take care of their near and dear ones. Abhishek lost both his father and grandmother. Is dire. Funeral pyres are burning relentlessly. बात हुई कि अंकल ने उन्हें नंबर भेज दिए थे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल न्यूज़पेपर में ऐड आए थे विद नोडल ऑफिसर्स के साथ में। तो उस पर फिर मैं सब पे कॉल करता रहा, किसी ने कोई नॉट रीचेबल, किसी का स्विच ऑफ, किसी का नंबर नहीं मिला। सिर्फ एक हॉस्पिटल वाले ने सिर्फ फ़ोन पिक किया था, और लेकिन उन्होंने भी यही बोला कि सर हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है, हमारे पास आईसीयू में जगह नहीं है, हम आप एडमिट नहीं कर पाएंगे। Angkor couldn't save his 63-year-old father. आ रहा था आंखों में, उनको लग रहा था क्या होगा। उसके बाद ये बात बोलते भी है क्या सुबह 8 बजे तक मेरी रिपोर्ट आ जाएगी।
और हम लोग भी अब पढ़ रहे हैं, कमा रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने फादर के लिए एक बेड, एक ऑक्सीजन का इंतजाम तक नहीं कर पाए। हमारे सामने उन्होंने दम तोड़ा, हम कुछ नहीं कर पाए। एक पेपर के लिए वैल्यू जिंदगी की वैल्यू नहीं है उनको। कोरोना ने नहीं, हमारे सिस्टम ने मार दिया। अगर वो जिंदा एक बार बेड मिल जाता टाइमली तो बच जाते। Mumbai has been ripped apart by unfolding tragedy that has laid bare the deep-rooted problems plaguing its public health system. Mumbai, India's commercial capital, is gasping for breath. Charred more than a dozen in a COVID ward. The state of Maharashtra, of which Mumbai is the capital, recorded the highest number of infections in April. It notched up more than 60,000 infections a day and over 30,000 deaths in the last 4 months. When we step out of the hospital after the duty is over, there are moments where we sit down and we feel that, what could I have done more to save that family? But yeah, that's I think part of our profession and part of this pandemic. Far away from ground zero, many Singaporeans in India, it has simply ripped the system apart. Can India rebuild again? Can it flatten the second wave and emerge from the ashes of tens of thousands of funeral pyres lit across the nation? Every few minutes, someone dies of COVID. The health system has collapsed, and so has India's self-belief. The federal and state governments are unable to tackle the worsening health crisis, save lives, or provide succor for the sick. But ordinary Indians are fighting back, reaffirming one's faith in humanity. From doctors to health workers to common people, all are risking their lives to defeat the viral onslaught. The second COVID wave has turned India into a deserted battlefield, littered with the dead and the dying. The scenes are reminiscent of dark ages in the distant past. Bodies littering the streets. Funeral pyres burning bright. खत्म हो गया गोलू, पूरा हो गया गोलू। जल्दी आ, तुम मनीषा पूजा को बोल दे बेटा, गोलू को मार दियो, गोलू को मार दियो ने, मार दियो ने, मार दियो। मेरे औलाद गया 25 साल के, मेरे बेटा, मेरे बेटे को 25 साल का बेटा, ये मेरे बेटे को 25 साल का बेटा मार दिया। मेरे लड़के को हो गया, कल लेके आया मैं रात को शाम को। मेरे बेटे को मारा इन्होंने, इंजेक्शन नहीं दिया, रेपिड में इंजेक्शन दिया। पश्चिम बिहार से आया था भैया मैं। क्या हुआ था? क्या कोरोना नहीं हुआ, बिना कोरोना का था। पेशेंट ले लिया, मेरा लड़के को मार दिया। 25 साल का लड़का था मेरा बेटा, एक ही औलाद मेरे थे भैया, मेरे आगे पीछे कोई नहीं। कौन सा हॉस्पिटल में? कब लाए थे? कल शाम को, कल शाम को 6 बजे लेके आया था भैया। तो डॉक्टर ने क्या बोला आपको? खत्म हो गया। इलाज करते रहे डॉक्टर ने क्या बोला, कैसा एडमिट किया आपको? कोरोना में खत्म कर दिया लड़के को। मेरी एक औलाद थी, एक ही लड़का था मेरा, एक ही लड़का था मेरा, कोई नहीं है। मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हो गया, मैं अकेला हो गया, मैं अकेला हो गया, मैं अकेला हो गया। और घर में कौन कौन आपके? मेरा कोई नहीं है, मेरी बीवी है, मेरा एक ही लड़का था बस। 25 साल की लड़का मेरा भैया, मेरा लड़का 25 साल का केजी आगे चक्कर में गया है। शादी हो गई थी लड़के की? नहीं भैया, कुंवारा था। शादी के मैंने रिश्ता किया, सब कुछ किया इसका। खत्म हो गया बेटा, बोलो खत्म हो गया बेटा।
अरे हो गया, क्या हो गया? पता नहीं ये बोलूँ, अरे पहले भी तैयारी की गाड़ी है थोड़ा। अरे दिशु को आगे संभाल ले बेटा, तू दिशु को संभाल ले बेटा आगे। खेल खत्म हो गया भाई, खेल खत्म हो गया, लिखेगा अभी भी खत्म हो गया 10 मिनट में भाई। ये बोल गया हेलो भाई, ये आगे भी आ जाओ बेटा, संभाल लो बच्चों को, मैं संभाल लो बच्चों आगे मेरे को। कौन संभालेगा मेरे बेटे को? एक्सक्यूज मी, कब एडमिट किया था आप लोगों ने? पापा ने बात होगी, पापा ने कल ही एडमिट करा, मार दिया इन लोगों ने मेरे भाई को, मार दिया है? नहीं था तब भी मार दिया इन लोगों ने, केजरीवाल ने मारा मेरे भाई को। क्या ऑक्सीजन की कमी के कारण? जिंदगी भर के साथ नहीं निभाया, सबके साथ कोई किसी तरीके से कमी नहीं छोड़ रहा, बताइए। ऐसे ऐसे बातें करती थी, मुझे तुम्हारे साथ रहूंगी जिंदगी भर। मेरी बीवी यहाँ एडमिट थी और ऑक्सीजन नहीं लगी, वो बेचारी एक्सपायर हो गई। अच्छी खासी लाए हम अभी थोड़ी देर पहले, सांस चल रही थी, 1.5-2 घंटे हो गए और सांस चल रही थी अच्छी। हमने कहा डॉक्टर साहब ऑक्सीजन लगा दो, 5-10 मिनट के लिए चाहे लगा दो, सही हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं लगाई, जब मर गई तब उसके बाद ट्रीटमेंट चालू कर रहे हैं। लिखा है कि यहाँ बाहर से ऑक्सीजन लाना मना है, यानी अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन अंदर लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनके परिजनों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो अपने बीमार परिजन को लेकर बाहर किसी और अस्पताल में जा रहे हैं। कमल छाबड़ा की भाभी लता मेरठ के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती थी। कमल ने हमसे बातचीत में बताया था कि लापरवाही और ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी भाभी को ठीक से इलाज नहीं मिल पा रहा। ये सर आप किसी को अननोन को भेज के देख लीजिए, स्टाफ कहता है कि लाओ हम बंदोबस्त कराते हैं, सिर्फ पैसे होने चाहिए पास। सर ले लिया हमारे से भी जो लेना था। लता का निधन हो गया। लता की शादी दीपक छाबड़ा से 2 महीने पहले ही हुई थी। दीपक 2 महीने में बताओ मेरे को छोड़ के चले गए। जल्दी हर सुविधा करवाया। जिस अस्पताल के गेट पर लिखा है कि बाहर से ऑक्सीजन लाने की जरूरत नहीं, उसमें इलाज के लिए आई लता के अंतिम संस्कार के कागज पर मौत की वजह ऑक्सीजन की कमी लिखा गया। We thought the worst was over. We thought we had overcome this new disease and going about our lives. But a more devastating crisis was about to unfold. The strains changed in the second wave, and the ability of this strain to impact or infect other people faster was much higher than the first wave. The virus that is there, it does not want to kill its host. Virus wants to live into our genome forever and multiply and replicate. The spring of 2021. It is business as usual in India. COVID-19 cases had peaked in September 2020, and by early February 2021, the national daily was around 10,000 cases. The COVID pandemic is in the end game in India. More than half of India's states weren't even reporting COVID deaths. Life seemed to get back to how it was. But in a couple of days, things started to change. And I, just another ordinary Indian, would watch the devastation unfold. Signs of the second wave first show up in Maharashtra. COVID cases in Mumbai, the state's financial capital, begin to rise. Mumbai has reported more than 9,000 daily coronavirus cases, which is the Maharashtra state's capital's highest ever single-day spike, according to Mumbai's municipal body, the BMC. We always knew
that second wave is coming because we were minutely monitoring Europe, Italy, Germany, France, UK. The first wave was not very infectious. Second wave was highly infectious. We knew that the virus is same. Second and third waves are coming in UK. Why it shouldn't come to India?